Coming back to the current topic which we are discussing so far. So this notebook has everything: relational algebra, relational calculus, transaction management, and concurrency control. Fine. So everything is there related to relational algebra, every operator and everything. Relational calculus की slides भी is mentioned here. So everything is there. I have removed all these. I don't know why it is not been. Similarly, transaction management is also there, and currently we are working and we are discussing the topics concurrency control. So in the last class, I have discussed about the lock-based protocol. Fine. So मैंने ये discuss कर दिया था कि what do you mean by concurrent transactions. Fine. What do you mean by concurrency control, so that your transaction doesn't conflict. That is your concurrency control, to make all the transactions run smoothly in a serial order without any conflict, without any uh, problems. And problems we have discussed that it can be any the problems is like dirty read, your, your update. These are the problems which we get in a concurrency transactions. जब multiple transactions run हो रही होती हैं and they are, अगर आप serial order में if you are running that transaction, then there is no problem. अगर आप पूरी की पूरी transaction serial order में run कर रहे हो, for example transaction 1 पहले run होगा, then 1 2 run होगा, then there will not be any problem. Problem occurs when conflicts occurs where there when there is a concurrent transactions. Concurrent means the transactions which are running parallel. So these are the problems we have discussed. Then how to overcome these problems, we have discussed the various techniques. Fine. So majorly techniques used as a locking technique, time stamping, and optimistic. Fine. For these are the transactions. We have also discussed about the schedule. I have told you about the schedule. There are two types of serial schedules and a non-serial schedule. Serialized means the transactions occur one after the other. So that means your serial schedule. And to make a schedule a serial, for example, one transaction interleave and come back again, second transaction come back, then third come back, then interleaving is there. Then to make that conflicting transaction serializable, then it's called a serializable schedule. सारी ट्रांजेक्शन को स्मूथली रन करना ताकि वो एक सीरियल ऑर्डर में ही रन करें. That to make that schedule a serial schedule, that process is called as your serializable schedule. Fine. So these are the serializable schedules. I've told you this is your non-serial schedule. ये बता दिया था मैंने that non-serial schedules are which you are interleaving. जैसे transaction 1 है, फिर transaction 2 आ गया, then again transaction 1 come up, then again transaction. And serial means in a one go without interleaving. So you are not interleaving in that case, and that is your called as your serial schedule. When you are not interleaving, you are doing everything in a one go, that is called as your serial schedule. And when you are doing it in the way that you are interleaving one transaction, then one transaction, T1 aaya, then T2, and then so on. So this is called as non-serial, and this is called as your serial schedules. Fine. So various categories is there: conflict and view serializability. Now serial schedule, now this is your one kind of a serial schedule. T1 पहले run हुआ and then T2 run हुआ. फाइन. तो एक ही ऑर्डर में रन हुआ. दैट मीन्स जो T2 को टाइम मिलना चाहिए था वो आइडियल था. सो इट कीप्स ऑन वेटिंग. सो ट्रांजेक्शन 2 कीप्स ऑन वेटिंग एंड ट्रांजेक्शन 1 इज जितना टाइम उसको चाहिए पूरा आपने दे दिया है, एंड देन कम अप योर T2. फिर आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो लेट इट बी कि जब तक ये रीड एंड राइट कर रहा है, देन इन बिटवीन यू कैन गो फॉर, जब तक ये बी पे फॉर एग्जांपल रीड एंड राइट कर रहा है, इन बिटवीन दैट वन यू कैन गो फॉर रीडिंग राइट ए. R stands for reading any data item and A is your data item. So in between जो interleaving हो रहा है, that is the serializable schedule. Serializable मतलब इस तरह से शेड्यूल्स को ब्रेकअप करना, इस तरह से इक्वलेंट शेड्यूल बनाना सो दैट कि कंफ्लिक्ट ना आए. कंफ्लिक्ट आएगा कब, जब आप रीड एंड राइट करोगे. एक ऑपरेशन को रीड करना है उसी आइटम को और एक को राइट करना है सेम डेटा आइटम को, तो कंफ्लिक्ट रीड में नहीं आता है. फाइन. कंफ्लिक्ट आता है रीड एंड राइट में और वाइस वर्सा, या राइट या रीड में. मतलब एक ही आइटम को आप रीड भी करना चाह रहे हो एंड राइट भी करना चाह रहे हो. तो यू हैव टू मेक योर शेड्यूल एज अ सीरियलाइजेबल.
सीरियलाइजेबल इस तरह से हो कि दे आर इक्वलेंट टू सीरियल, दैट मीन्स कि वो इक्वलेंसी में ही रन करे, इस तरह से लगे कि वो बिल्कुल जैसे यहाँ रन हो रहा है वैसे ही वो यहाँ रन करे और वैसे ही वो यहाँ रन करे। दैट मीन्स जैसे हमने पूरा टाइम इसको T1 को दे दिया है एंड देन अगेन T2 इज कमिंग, फाइन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्टिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होगा, बिकॉज पहला पूरा टाइम दे दिया गया है T1 को, सीपीयू ने पूरा टाइम T1 को दे दिया है एंड देन योर T2 को। लेकिन सीरियलाइजेबल होता है कि आप शेड्यूल को ब्रेक इस तरह से कर रहे हो या दो ट्रांजेक्शन्स को इंटरलीव इस तरह से कर रहे हो कि वो बिहेव ही ऐसे करेंगी कि वो सीरियलाइजेबल है, फाइन, कंफ्लिक्ट ही नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इसने रीड किया ए को, फिर इसने राइट किया ए को, फिर इन बिटवीन T2 आ गया, उसने रीड किया ए को, फिर उसने राइट किया ए को, फिर इसने रीड किया बी को एंड राइट किया एंड दिस, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया विदाउट कंफ्लिक्टिंग एंड इट बिहेव्स लाइक कि ये सीरियलाइजेबल है। क्लियर? सिमिलरली यू कैन ब्रेक दिस वन ऑल्सो। इसमें क्या हो रहा है, T1 फर्स्ट आ रहा है एंड T2 सेकेंड आ रहा है, सो T2 इज फॉलोइंग द T1। इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल T2 इज कमिंग फर्स्ट, पहले T2 आ रहा है तो वो रीड एंड राइट कर रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, जब इसने राइट ऑपरेशन फिनिश कर दिया है देन T1 is reading the data item A, then go for data item read and write operation by T2 and then writing in this way। तो इसमें भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। इन दिस वे यू हैव टू ब्रेक योर शेड्यूल और मेक योर ट्रांजेक्शंस कंकरेंट ट्रांजेक्शन इन सच अ वे कि वो सीरियलाइजेबल हो जाए, बिहेव करें एज अ सीरियल, मतलब डेडलॉक नहीं आए, स्टारवेशंस नहीं आए, in that case it's called as a serializable schedules। Now one of the more example of serializability is this, schedule is not serial, फाइन, अब ये सीरियल नहीं है बिकॉज ये वन गो में नहीं हो रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, पहले T1 कर रहा है, फिर कुछ T2 कर रहा है, देन इंटरलीविंग T1 कर रहा है एंड सो ऑन, सो इट्स ब्रेकिंग अप एंड पैरेलली दो ट्रांजेक्शंस चल रही हैं। विद सीरियल होता है जब एक ही बार में पूरा का पूरा हो जाता, अब एक बार में नहीं हो रहा है, बट हमने उसको इक्वलेंट बना दिया है, बट इट इज इक्वलेंट टू अ शेड्यूल T1 फॉलोज योर T2, फाइन, सो हमने इक्वलेंट बना दिया है इस शेड्यूल को। कैसे, फर्स्ट T1 आया है, उसने रीड किया है ए को, उसने 50 लेस किए हैं एंड देन राइटेड ए, देन कम्स T2 ने रीड किया है, देन सम ऑपरेशंस ऑन A1 एंड राइट A1, देन कम्स अगेन T1 राइटिंग, doing some work on B1 and doing it, and finally T2 is doing on B1, so everything is doing in a smooth manner without conflicting on डेटा आइटम ए एंड बी, कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है कहीं पर। सो आपने ये पूरा का पूरा शेड्यूल सीपीयू का जो थॉरोपुट था, दैट मीन जो यूटिलाइजेशन था, उसको यूटिलाइज करके आपने विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर पैरेलली दो ट्रांजेक्शंस को रन कर दिया है एंड यू हैव मेक दैट शेड्यूल अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल, उसको इक्विवेलेंट शेड्यूल बना दिया है, rather than पूरा पहले T1 एग्जीक्यूट होता तो T2 को वेट करना पड़ता, इट कीप्स ऑन वेटिंग एंड वेटिंग जब तक T1 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, सो वो हो जाता है सीरियलाइजेबल। अब इसमें क्या हो रहा है, यू आर ब्रेकिंग अप इंटरलीविंग एंड यू आर मेकिंग द शेड्यूल, दो ये दोनों शेड्यूल्स कंकरेंट, मतलब ये पूरा का पूरा शेड्यूल कंकरेंट है, ट्रांजेक्शंस कंकरेंट है, बट यू आर मेकिंग देम एज अ सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल का मतलब है कि कंफ्लिक्ट कहीं अराइज नहीं हो, कहीं पे भी डेडलॉक नहीं आए, कहीं पे भी आपका आइडियल सिचुएशन नहीं आ जाए, वेटिंग टाइम एक्सीड ना कर जाए, या आपके प्रोसेसर या थ्रेड डेड ऑफ में ना चले जाएं, फाइन, सो दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ शेड्यूल इक्विवेलेंट टू योर सीरियलाइजेबल, फाइन। सी वन मोर एग्जांपल, दिस इज योर ट्रांजेक्शन T1 फॉर रीड, दिस इज योर ट्रांजेक्शन 2। अब पहले T1 आया है, दिस वन इज, रिमेंबर दैट T1 पहले आया है, रिमेंबर, तो T1 फर्स्ट आया है, सपोज मान लिया जाए कि 9 बजे के आसपास T1 आया है एंड T2 आया है आपका 10 बजे, फाइन, 10, तो फर्स्ट जो आया है दिस इज ओल्डर, सो T1 इज अ ओल्डर ट्रांजेक्शन एंड T2 इज योर यंगर ट्रांजेक्शन, रिमेंबर दैट। टाइम स्टैम्प में जब आप पढ़ोगे, सो ये जो ट्रांजेक्शन जो पहले सबसे पहले अकर होती है जिसका है, तो उसका टाइम स्टैम्प है 9 बजे और इसका टाइम है 10 बजे। इस ट्रांजेक्शन T1 को हम कह रहे हैं ओल्डर क्योंकि वो पहले आई है, और T2 को हम कह रहे हैं यंगर बिकॉज वो बाद में आई है, लेकिन टाइम स्टैम्प T2 का ज्यादा है, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प किसका है, T2 का, रिमेंबर दैट।
T1 is older, T2 is younger. एक बात ये याद रखो, जो बाद में आया है वो यंगर है. दूसरा बात ये याद रखो कि टाइम स्टैम्प T1 का 9 बजे है लेकिन T2 का है 10 बजे. सो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प किसके पास है? T2 के पास. फाइन, मतलब लास्ट ऑपरेशन जो हुआ है ए के ऊपर, चाहे रीड हुआ है चाहे राइट हुआ है, वो T2 ने किया है, बिकॉज T2 हैज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प. जिसके पास सबसे लेट का टाइम होगा वो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प गिना जाएगा. Fine. So in this case, T1 is older, T2 is younger. T2 has the largest timestamp and T1 has a lesser. मतलब कहने का मतलब है इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है T2 का. Now see here in this one, T2 ने रीड किया, मतलब T2 आया, रीड हुआ. अब प्रॉब्लम ये है कि R1 R दोनों डेटा आइटम्स को रीड कर रहे हैं. फाइन, तो देयर इज नो कंफ्लिक्ट इन R में कंफ्लिक्ट नहीं होता है. मतलब जब आप रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीपल रीड्स हो सकते हैं, सिंगल रीड्स हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल. सो विद R and R देयर विल नॉट बी एनी रीडिंग a data item by multiple transactions by multiple user. There will not be any conflict. So that is why we can say S1 is equal to S2. ये एक शेड्यूल था जिसमें T1 था and then followed by T2 था. ये एक शेड्यूल है जिसमें T2 फर्स्ट है and then followed by your T1. So both the schedules are there and both are logically equal. क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? Reading. Both are doing the reading. Clear? So remember that both are doing the reading and reading doesn't have your conflict. Fine. So this is a way. और timestamp याद रखना, that timestamp of T2, क्योंकि T2 बाद में आया है, so timestamp of T2 is larger here. इसके अंदर T1 बाद में आया है, so T1 is your having the largest timestamp. Fine. अब क्योंकि T2 पहले आया है, so इसका timestamp आया है, इसका timestamp हो गया कम, और ये T1 बाद में आया है तो इसका timestamp हो गया है ज्यादा. Fine. So in this case, क्योंकि दोनों read operations कर रहे थे, so both the schedules are logically equal. Fine. Then come to your this T1, ये भी read कर रहा है and T2. Fine. Now there is a second operation is writing. अब देखो conflict सबसे ज्यादा आता है reading और writing में. Fine. Now see, this is your T1 and this is your T2. T1 come up at 9 o'clock, उसने read किया data item A को, then come up your T2 और उसने write कर दिया A को. That means कुछ additions या deletions किए, उसने override कर दिया, उसकी value जो थी A की उसकी change कर दी. Now this is my schedule S1. Now I swapped it. What happened? That T2 comes first. Fine. अब T2 आया और T2 ने कुछ changes कर दिए और T1 ने उसको बाद में read किया. तो ये दोनों जो हैं, दोनों का जो resultant set है, जो दोनों का resultant set है वो अलग अलग है. पहले उसने T1 ने रीड किया था और बाद में T2 ने उसको मॉडिफाई किया था. यहाँ पर पहले T2 ने उसको राइट किया एंड देन T1 ने उसको रीड किया. सो बोथ आर नॉट लॉजिकली सेम. दोनों शेड्यूल्स अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, अलग अलग जनरेट कर रहे हैं रिलेशन के अंदर डेटा. सो बोथ आर नॉट लॉजिकली इक्वल. फाइन. सो जब आप रीड ऑपरेशंस कर रहे हैं तो इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर. ये आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है जब दोनों रीड ऑपरेशंस कर रहे हैं. जब R और T, मतलब एक R हो रहा है और एक आपका W हो रहा है, इफ बोथ आर डूइंग रीड एंड राइट, फाइन, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, देन इज कॉल्ड एज योर कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. अगर दो ऑपरेशंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक ही डेटा आइटम के ऊपर, दोनों लड़ रहे हैं कि एक ने रीड करना है और एक ने राइट करना है, that can be a conflicting pair and that leads to your deadlock or a starvation. यहां तक समझ में आया है? ये सेक्शन बी समझ में आया? What do you mean by this? Yes, ma'am. Logically, yes, fine. So this is actually your what do you mean by a conflicting pair? What do you mean by a non-conflicting pair? What do you mean by a transaction T1 T2? मैंने बताया जो ट्रांजेक्शन बाद में आ रही है दैट इज अ यंगर ट्रांजेक्शन. दिस इज योर यंगर ट्रांजेक्शन जो बाद में आ रही है एंड दैट इज योर ओल्डर ट्रांजेक्शन. और जो पहले आ रही है उसका टाइम स्टैम्प कम है, जो बाद में आ रही है उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है. दैट मीन्स लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प अगर वो बाद में आ रही है. फाइन.
तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज नथिंग, वही हो गया ऑप्शन आपका कि कई ऑपरेशंस आपको दिखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल की शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल दिस वन T3, T4 एंड T6, फाइन, ये ट्रांजेक्शन्स आई हैं। पहले फॉर एग्जांपल रीड किया है, रीड द आइटम डेटा आइटम Q, फाइन, फिर T4 आई, उसने मॉडिफाई किया Q को, देन अगेन आ गई T3 एंड देन अगेन आ गई आपका T6। तो ये देख रहा है कि मल्टीपल राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, फाइन, ऑन सेम डेटा आइटम Q के ऊपर। इट सीम्स लाइक कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं सब आपस में। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अगर थोड़ा सा भी मतलब इसमें हमें दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज सारे ही राइट ऑपरेशंस के लिए फाइट कर रहे हैं, फाइन। सो अगर थोड़ा सा भी आपका प्योरिटी वाइज, टाइम वाइज अगर कुछ हो जाएगा तो इट लीड्स टू डेडलॉक। लेकिन वही होता है कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होता है, दैट इज शोइंग इट कि दैट द शेड्यूल इज सीम्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ व्यू सीरियलाइजेबल। मतलब कई बार आपको कॉन्फ्लिक्टिंग दिखते हैं पर जरूरी नहीं कि वो कॉन्फ्लिक्ट करें, so that is called as view serializability, a schedule view if it's equivalent to your serial schedule, equivalent है कि सब smoothly run कर रहे हैं आपके, and this is running like a serial schedule. Every conflict serializable schedule is a view, मतलब कहने का मतलब है जो हमें लग रहा है, जैसे रीड राइट है, अब इसमें रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, सो इट सीम्स लाइक कि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी कर जाएंगे, बट एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब रीड राइट होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट टर्म तभी यूज करेंगे हम जब रीड एंड राइट हो रहा है, रीड रीड के लिए कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इट सीम्स लाइक अ व्यू सीरियलाइजेबल। तो व्यू कहने का मतलब इट सीम्स लाइक दैट। सम शेड्यूल्स आर व्यू, दिखते हैं कि सीरियलाइजेबल है बट आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, सो वाइस वर्सा इज नॉट देयर, बट कॉन्फ्लिक्टिंग जो है they can seems as a view serializable. So that means, and that is actually called as view serializability, दिखना। and conflicting वाले जो हैं it can be possible कि वो आपके व्यू दिखें, that means it seems like कि वो equivalent है, but vice versa is not possible. Similarly टाइम स्टैम्प का मैंने बता दिया है, टाइम स्टैम्प्स का नोटेशन होता है TI एंड योर TJ, फाइन। नाउ TI फर्स्ट आया है एंड एरोस डिपिक्ट्स कि उसके बाद आया है आपका TJ, so this is your TJ, so this is your TI and TJ. So left hand side is your starting node, which means read and write operation instructions come first on the timeline. So अगर हम TI goes to TJ लिख रहे हैं, इसका मतलब that means TI is a first one, so this is the older transaction, this is a younger transaction, and this has a lesser timestamp and this has a more timestamp. और प्योरिटी किसको मिलेगी पहले, जो पहले आया है। तो जो पहले आया है उसी को फर्स्ट रीड एंड राइट ऑपरेशंस मिलेंगे, लॉक्स मिलेंगे, एंड प्योरिटी हैज टू बी गिवन हु इज द ओल्डर ट्रांजैक्शन, फाइन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यंगर वन को अबॉर्ट होना पड़ता है या डाई या वेट करना पड़ता है, और टी जो यंगर है आपका TI जो है दैट इज अ ओल्डर वन, सो प्योरिटी गोज टू TI जो पहले आया है। एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज योर एंडिंग नोड, अ नोड फॉर रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस दैट कम लेटर इन द टाइमलाइन, फाइन। और जो बाद में आया है उसका टाइम स्टैम्प लार्जेस्ट है, इसका टाइम स्टैम्प लार्जेस्ट है बिकॉज ये बाद में आया है और ये यंगर भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, फाइन। सो दिस इज अबाउट योर, हमने लास्ट क्लास में ही कुछ टॉपिक्स थे दैट वी हैव मिस्ड आउट एंड दैट इज वी आर डिस्कसिंग। मैंने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स बता दिया था, दैट व्हाट यू मीन बाय एक्सक्लूसिव लॉक एंड व्हाट यू मीन बाय शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक आप तभी यूज करेंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रीड ऑपरेशन। Sharing lock, that means multiple reads can be possible, so you can use lock S for sharing and lock S for your exclusive. Exclusive means कि आप ही को ही वो lock मिला है and you have to lock and unlock that item, and exclusively जब एक user को lock मिलता है that lock is called as your exclusive lock, mutually exclusive, fine. And shared means sharing पे है, so we have discussed it, मैंने बता दिया था sharing possible है, फाइन। दो शेयर लॉक्स मतलब शेयर कर सकते हो आप, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक्स कैन नॉट बी शेयर, सो इट इज अ डेडिकेटेड लॉक गिवन टू वन यूजर आइटम और अ वन ट्रांजैक्शन, फाइन। देन इन 2PL these are the locks. Then we have also discussed this 2PL, मैंने बताया था 2PL stands for your protocol, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें अभी आप सारी जो टेक्निक्स है, these are all techniques to make your concurrent transactions run smoothly, conflict ना arise हो,
उसके लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं. लॉक करना, टाइम शेयरिंग्स पे करना, टाइम स्टैम्पिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ग्राफ प्रोटोकॉल्स. दीज आर ऑल प्रोटोकॉल्स सो दैट योर ट्रांजेक्शन डजंट कन्फ्लिक्ट. फाइन. तो यही हमारी है कि हमारी जो कन्फ्लिक्टिंग आ रहा है रीड राइट पे, हमारे शेड्यूल्स सीरियलाइजेबल हैं, बना रहे हैं हमको सीरियलाइजेबल विदाउट कन्फ्लिक्टिंग, पर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं रीड एंड एक डेटा आइटम के ऊपर. सो ये जो कन्फ्लिक्टिंग सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स हैं उनको हम और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सो दैट इट कैन बी, देयर कैन नॉट बी एनी डेडलॉक, there cannot be any lead to starvation, there cannot be lead to any kind of a death, or you can say a choking of the system. So that means we are using these protocol. अब now two phase says ग्रोइंग फेज, ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था. टू फेज, वन इज अ श्रिंकिंग, मतलब एक ऐसा फेज आएगा जिसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को लॉक्स मिलेंगे. द ट्रांजेक्शन ओनली गेट्स अ लॉक, इट ओनली एक्वायर्स द लॉक्स. फाइन. एंड दैट मीन्स उसको कोई भी राइट नहीं है कि उस टाइम पे वो अनलॉक करे किसी डेटा आइटम को, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रोइंग. अब इस फेज के अंदर जब वो ट्रांजेक्शन जा रही है, जब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है और आ गई है एग्जीक्यूशन में, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अब वो सिर्फ लॉक्स को इंक्वायर करेगी. जितने डेटा आइटम्स को उसने रीड करना है, राइट करना है, उन सबको उसने एक्वायर करना है, लॉक्स लेने हैं. पहला उसका काम है लॉक्स लेना, एंड सेकंड उसका काम है जब उसने काम उस पर कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल डेटा आइटम को उसने मॉडिफाई कर दिया है, डेटा बी को उसने मॉडिफाई कर दिया है, या रीड राइट जो भी उसने ऑपरेशंस करने थे, द ट्रांजेक्शन हैज डन. उसका जब काम खत्म हो गया तो वो सेकंड फेज में जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर श्रिंकिंग फेज. श्रिंकिंग फेज नाउ स्टार्ट रिलीजिंग द लॉक. अब वो किसी लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता है, वो चाह के भी करना चाहे तो अबॉर्ट हो जाएगा या उसको वेट करना पड़ेगा, बट इट कैन नॉट ऑब्टेन अ लॉक इन दैट फेज. सो एक तरह से मान के चलो यू फेज है. फर्स्ट यू फेज होता है जैसे आपका हिल शेप मान के चलो, माउंटेन की तरह. फर्स्ट फेज है ग्रोइंग फेज, एंड उसके बाद है रिलीजिंग फेज. लाइक अ माउंटेन शेप, फर्स्ट यू आर इन द ग्रोइंग फेज एंड देन डाउनवर्ड्स यू आर इन द श्रिंकिंग फेज. तो लाइक दिस स्ट्रक्चर, तो पहले आप एक्वायर कर रहे हो, एंड वंस यू हैव डन इट यू आर स्टार्ट रिलीजिंग योर लॉक्स. सो दीज आर द टू फेज टू इंश्योर कि कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, सीरियलाइजेबिलिटी हो जाए, आप कोई भी और लॉक पॉइंट्स पर आकर अपना काम करो. जैसे ही आपने लॉक्स इंक्वायर कर दिए, नाउ यू स्टार्ट डूइंग द वर्क, एंड आफ्टर दैट यू आर रिलीजिंग दैट. फाइन. नाउ देयर आर टू अदर मोड्स फॉर दिस वन, एंड दैट इज योर 2PL. एक तो हो गया 2PL, टू फेज लॉक, एंड इट हैज टू फर्दर कैटेगरीज. इसकी फर्दर टू है, वन इज योर स्ट्रिक्ट एंड वन इज योर रिग्रेस एंड वन इज योर कंजर्वेटिव. Fine. Now rigorous says, these are the phases. So rigorous, this is your rigorous, then your strict, more lighter one, and basic 2PL मैंने आपको बता दिया, that is also called as your conservative, जिसमें आप inquiring and this कर रहे हैं. Now what does rigorous says? Rigorous says a transaction T does not release any of the locks until it is commit or abort. जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं कर देती या अबॉर्ट नहीं कर देती, तब तक वो लॉक्स अपने रिलीज नहीं करेगी, एंड दैट इज रिग्रेस 2PL प्रोटोकॉल. फाइन. स्ट्रिक्ट 2PL क्या कहता है? द ट्रांजेक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स राइट लॉक. यहाँ वो कह रहे हैं एनी ऑफ द लॉक, कोई भी लॉक, ना रीड का ना राइट का. इसमें कह रहा है स्ट्रिक्ट 2PL कह रहा है रीड का तो वो छोड़ सकते हैं, बट राइट का the transaction does not release any of its right lock until it's commit or abort. ये strict हो गया. Rigorous वाले में क्या है? कोई भी लॉक नहीं छोड़ सकती है, ना रीडिंग ना राइटिंग. Strict वाले में क्या है? Right lock. Reading it can be possible, you can release the read lock, but right lock until it's commit, and this guaranteed the strict schedule. Fine. And conservative आपका basic है, a transaction to lock all the items. और ये तो आपका बेसिक हो गया कि ग्रोइंग फेज हो गया, एंड देन योर श्रिंकिंग फेज. सो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट दैट व्हाट इज डू, एंड प्री डिक्लेयरिंग योर दिस, प्री डिक्लेयरिंग कि आपने कितने रीड करने हैं, कितने राइट करने हैं, उन सबको आप प्री डिक्लेयर कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने लॉक्स को एक्वायर कर रहे हो, एंड देन यू आर रिलीजिंग. सो वन इज योर कंजर्वेटिव, दैट इज अ बेसिक 2PL, वन इज अ ग्रोइंग फेज, एंड वन इज योर रिलीजिंग फेज. एंड स्ट्रिक्ट 2PL सेज you cannot leave your right locks until you commit or abort,
And rigorous says you cannot release any of your logs unless you commit or abort. So that is your rigorous 2PL, strict 2PL and conservative 2PL. Fine. Similarly this one, वो मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा जो है वो आपका rigorous है, उससे lighter version आपका strict है, and उससे lighter version आपका basic 2PL है, and same here. So this is a 2PL strict, and this is a definition for your, this is the definition for your normal. Fine. So based on your, ये मैंने discuss कर दिया, that the difference actually you cannot, either वो आपका shared है या फिर आपका exclusive है. Shared means for reading के लिए, exclusive means for writing के लिए. So it all has to be hold up. Fine. So इसमें क्या है, only exclusive. Exclusive means सिर्फ राइट के लिए जब आप लॉक एक्वायर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सक्लूसिव लॉक, और जब आप रीडिंग के लिए एक्वायर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर शेयर्ड लॉक. Fine. So these are the two categories, rigorous and strict for your. Fine. And then comes your time stamping protocol. Now time stamping says, मैंने आपको अभी बताया है जस्ट पहले, टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग मतलब टाइम के ऊपर चलेगा. फाइन. ये इंश्योर करेगा सीरियलाइजेबिलिटी. एंड प्रेसिडेंस ग्राफ इज देयर. प्रेसिडेंस मींस जो पहले आया है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, एंड जो बाद में आया है उसको प्रायोरिटी लेस मिलेगी. और ट्रांजेक्शन विद अ स्मॉलर, अब ये ट्रांजेक्शन पहले आई है 9 बजे तो इसका टाइम स्टैम्प स्मॉलर है, ये ट्रांजेक्शन बाद में आई है तो इसका टाइम स्टैम्प लार्जर है. Fine. Thus, there will not be any cycle in the precedence graph. Timestamp protocol ensures freedom from the deadlock as no transactions ever fail, but the schedule cannot be a cascaded free or not even recoverable. Now, there are problems of recovery. कोई abort कर गया है, कोई crash कर गया है, तो उस टाइम पे कई बार प्रॉब्लम आती है. We'll discuss what do you mean by cascading. Cascading हो जाता है multiple, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो गई हैं. फाइन. वेट की वजह से, डेडलॉक की वजह से, देयर कैन बी एनीथिंग. एंड सिमिलरली जो आपकी ट्रांजैक्शंस कमिट हो गई हैं वो भी आपकी रिकवरेबल है या नहीं है या अनकमिटेड है. तो रिकवरेबल मतलब आफ्टर रिकवरी यू वांट टू फेच दैट नॉर्मल स्टेट ऑफ योर डेटाबेस. एंड कैस्केडेड फ्री मतलब एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस आपकी रिपल आउट ना करें या डेडलॉक में नहीं जाएं. फाइन. Come to timestamp. Timestamp ensures her transactions के, for example, you have the data item Q. It has two timestamps values. One is called as W, that is for writing, उस पर लिखा कब गया है और उस पर read operation कब हुआ है. तो हर data item के दो timestamps होते हैं, एक reading का और एक writing का. ये data item कब last read किया गया है, that is called as R timestamp. और जब ये data item last लिखा गया है, इसके ऊपर ओवरराइट हुआ है या इसको चेंज किया गया है, either delete, modify or update, तो that is called as your W timestamp. Fine. And याद रखो जो भी timestamp की वैल्यू है उस डेटा आइटम के ऊपर, that is a largest. मैंने बताया था कि largest means जो पहले आया है, जो पहले आया है उसका टाइम स्टैम्प कम है. दैट मीन्स अगर ये 9 बजे आया है तो उसका टाइम स्टैम्प कम है और इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है. फाइन. जो लास्ट में गया है, दैट मीन्स कहने का मतलब है ये ट्रांजेक्शन 10 बजे होके गई है तो ये यंगेस्ट है और इसका टाइम स्टैम्प लार्जेस्ट है. रिमेंबर दैट. इसका मतलब है कि जब भी क्यू आइटम डेट हुई मतलब रीड किया गया है वो लास्ट पिक करेगा कि सबसे लास्ट में कब वो पढ़ा गया और कब वो राइट किया गया. एंड दैट हैज टू बी लार्जेस्ट. लार्जेस्ट मतलब लास्ट टाइम. लार्जेस्ट कहने का मतलब सबसे लेट. दैट मीन्स सबसे लेट, सबसे लास्ट में ये कब पढ़ा गया है और कब लिखा गया है. राइट ऑपरेशन कब हुआ है. लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प एनी ट्रांजेक्शन executed write queue successfully. Similarly, our timestamp is the largest timestamp of any transaction executed read operation on the data item queue successfully. Fine. So this is called as two timestamps on your data item queue. Fine. Read and write. So ये भी हो गया. And what this protocol says actually, ये मैंने बता दिया. Like ये क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल TI एक ट्रांजेक्शन है एंड इट इशूज अ रीड. फाइन. अब TI ने इशू किया कि वो रीड करना चाह रही है ट्रांजेक्शन, रीड ऑपरेशन करना चाह रही है ऑन डेटा आइटम क्यू. तो वो चेक करेगा टाइम स्टैम्प.
क्यू का टाइम स्टैम्प चेक करेगा राइटिंग का, फाइन, वो चेक करेगा कि इसके ऊपर लास्ट ऑपरेशन राइटिंग का कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आया, दिस TS स्टैंड्स फॉर टाइम स्टैम्प एंड TI मतलब ट्रांजेक्शन। सो इस TI का, फॉर एग्जाम्पल TI का ट्रांजेक्शन टाइम था 9, फाइन, क्यू आइटम किया गया है 10 बजे। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजेक्शन TI आई, उसने कहा मुझे रीड करना है डेटा आइटम क्यू को, फाइन, और ये टाइम स्टैम्प है, जो लास्ट डेटा आइटम थी वो आई है आपकी क्यू पे, और ये 10 बजे आपका रीड हुआ है। तो ये टाइम स्टैम्प चेक करेगा एंड TI नीड्स टू रीड अ क्यू वैल्यू ऑलरेडी overwritten, that means read operation is rejected and TI is rolled back. क्यों रोल बैक हो गई है? बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन थी इसका टाइम स्टैम्प कम था, और ये जो है आपका राइटिंग ऑपरेशन है इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा था, इसका मतलब बाद में ओवरराइट हुआ है, फाइन, सो इट हैज टू बी ओवरराइटेड। अब ये ट्रांजेक्शन आपकी 10 बजे लिखी गई है और ये बाद में आई हुई है, तो अब कहने का मतलब ये राइट ऑपरेशन अभी कर रही है, अभी ये कमिट हुई है नहीं हुई है, अभी ये लिख रही है, राइट हो रहा है उसके ऊपर बाद में, और ये पहले आ चुकी है। तो जब तक ये ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती तब तक ये उसको रीड नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई दिस TI हैज टू बी रोल बैक। इस पे राइट ऑपरेशन बाद का है, अगर इसका राइट ऑपरेशन बाद का है तो ये ट्रांजेक्शन पहले आई है, ये उसके कमिट का वेट करेगी, जब तक ये ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती, ये आइटम को रिलीज नहीं कर देता, तब तक ये ट्रांजेक्शन TI उसको रीड नहीं कर पाएगी। दैट इज व्हाई TI हैज टू रोल बैक, फाइन। अब अगर केस उल्टा है, अगर TI आपकी आती है बाद में, कहने का मतलब है अब ये TI आपकी आई है, फॉर एग्जाम्पल इसका टाइम स्टैम्प था 10 बजे, फाइन, और इसका है 9 बजे। नाउ दिस TI, अब ये ट्रांजेक्शन TI आपका आई है लेटर, इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, और ये आई थी पहले, फाइन, अब ये पहले करके जा चुकी है, दैट मीन्स ये 9 बजे अपना राइट ऑपरेशन करके जा चुकी है। अब ये ट्रांजेक्शन 10 बजे आ रही है तो ये उसको रीड कर सकती है, सो रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया है क्लास? यस, यस मैम। सो Yes, तो नहीं है ma'am. सब? एक बार दोबारा No, ma'am. बताऊं, एक बार दोबारा बताऊं, शैल आई रिपीट दिस वन? यस क्लास, टाइम प्रोटोकॉल सेज कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो राइट ऑपरेशन चल रहा है, बाद में आया है, और पुरानी ट्रांजेक्शन, टाइम स्टैम्प पुराना मतलब कम, कहने का मतलब है कि वो पहले आई है। मैं बता रही हूँ ये 9 बजे आई है ट्रांजेक्शन और इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, हो सकता है 9:10 हो, इसका टाइम 9:10 हो सकता है, फाइन। अब ये 9:10 पर ट्रांजेक्शन अपना राइट ऑपरेशन कर रही है, ये ट्रांजेक्शन आती है और कहती है मुझे रीड करना है इसी डेटा आइटम क्यू को, तो ये अलाउएबल नहीं है इस प्रोटोकॉल के हिसाब से। रीजन बिहाइंड इट कि ये ट्रांजेक्शन अभी अपना काम कर रही है, फाइन, इट इज डूइंग राइट ऑपरेशन बिकॉज ये बाद में आई है, अभी ये कमिट होगी या अबॉर्ट होती है वो बाद में पता चलेगा, जब तक ये इस आइटम को रिलीज नहीं कर देती और बाहर नहीं आ जाता जो उस पर ऑपरेशन हो रहा है राइट का, क्योंकि इसका लार्जेस्ट टाइम स्पैन आ रहा है 9-10, फाइन, और इसका आ रहा है 9, तो जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी करंट हो रही है, हो सकता है आगे जाकर ये अबॉर्ट हो जाए, ये जो ट्रांजेक्शन इसके ऊपर हो रही है राइट के ऊपर वो अबॉर्ट हो जाए, तो इसका रीडिंग ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है, सो इट विल नॉट अलाउ टू रीड बिकॉज इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है इस ट्रांजेक्शन का, जो राइट ऑपरेशन इसके ऊपर हो रहा है, दैट इज व्हाई TI हैज टू रोल बैक। क्लियर? एंड सेकेंड वन केस स्टडी सेज कि अगर टाइम स्टैम्प इसी का ही, अब इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब अब अगर ये आ गई है 9:10 पर, फाइन, ये आ गई है 9:10 पर और ये काम कर चुकी है 9 बजे, फाइन, ये ट्रांजेक्शन मतलब राइट ऑपरेशन हो चुका है क्यू डेटा आइटम पर 9 बजे, 9 o'clock you have done it the right operation। अब एक ट्रांजेक्शन आती है विद अ ग्रेटर टाइम स्टैम्प मतलब उसके बाद आ रही है 9:10 पर और वो रीड करना चाह रही है इस क्यू आइटम को, तो वो अलाउएबल है क्योंकि वो करके जा चुकी है और अब ये ट्रांजेक्शन आई है 9:10 पर और ये ऑलरेडी डन है, तो अब आप इस आइटम को रीड कर सकते हो सक्सेसफुली।
In this way time protocol or time based stamping protocol works. MCA5 समझ में आया? What do you mean by time based protocol? Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. So in this way time based protocol works. ये मैंने बता दिया. This is the last one. एक बार देख लो. TS मैंने बता दिया. TI अगर TI पहले आई है, अगर TI पहले आई है, that is called as older transaction. अगर TJ बाद में आई है, that is called as your younger transaction. ये मैंने बता दिया है. मैंने ये भी बता दिया आपको that TJ का टाइम स्टैम्प जो ट्रांजेक्शन बाद में आ रही है उसका टाइम स्टैम्प बड़ा है. So that means it has a greater value timestamp. So in this way it is written as this. TS timestamp of TJ, it is a greater value than timestamp of your TI. TI is the older transaction and TJ is your younger transaction. Fine. और जब भी आप टाइम स्टैम्प मैंने दो बता दिए हैं, एक आपका टाइम स्टैम्प होता है रीडिंग का और एक टाइम स्टैम्प होता है राइटिंग का. और हर आइटम के ऊपर लार्जेस्ट होता है. लार्जेस्ट मतलब सबसे लेट, सबसे लास्ट वो ट्रांजेक्शन, सबसे लास्ट वो डेटा आइटम कब एक्सेस हुआ रीडिंग के लिए एंड राइटिंग के लिए. फाइन. और उसके बेसिस पर आप ये प्रोटोकॉल रन करोगे एंड दिस इज अ थीम ऑफ द प्रोटोकॉल कि कब आप उस ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करोगे और कब उस ट्रांजेक्शन को आप कहोगे दैट इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. सो दे आर टू. दिस इज अ प्रोटोकॉल, this is the theme of the protocol and this is the way the timestamp protocol works. Fine. So for example ये T1 आई है और ये T2 आई है, ये both the transactions अपने अपने टाइम पर आई हैं. फाइन. अब एक जो है वो डेटा आइटम Q को रीड करना चाह रही है. फॉर दिस डेटा आइटम W, फाइन, राइट ऑपरेशन हुआ है, टाइम स्टैम्प Q है फॉर दिस रीड ऑपरेशन. तो हर एक डेटा आइटम के पास दो टाइम स्टैम्प्स हैं, one for the reading and one for the writing, और it has a largest value. सबसे लास्ट टाइमर के हिसाब से that is the largest value. और उसके बेसिस पे आप ये प्रोटोकॉल डिफाइन करोगे that this is ट्रांजेक्शन. अब अगर उसको रीड करना है तो टाइम स्टैम्प चेक करोगे. टाइम स्टैम्प अगर ऑलरेडी राइटिंग हो रहा है तो अबॉर्ट कर दोगे पुराना वाले को. और अगर टाइम स्टैम्प कह रहा है कि मैंने राइट ऑपरेशन कर दिया है और पहले करके चला गया हूं तो आप उस बाकी ट्रांजेक्शंस को कह सकते हो कि दे कैन एग्जीक्यूट. फाइन. सो इन दिस वे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल वर्क्स. So I've discussed today 2PL, that is your 2PL, two-phase locking protocol. I have discussed timestamp protocol. Fine. So in this way it works. Next class we'll discuss about the graph protocols and everything. Fine. यहाँ तक सबको समझ में आया है? Any class, any query? Anything you want to ask? No, ma'am. बताओ. Please do fill it up your Google form for your attendance. I will download the attendance also. Any query? Now we have 2-3 minutes left for the class. You can ask any question or any query. Plan it a test according to you on which date you want to conduct a test, from which day, on which date and from which syllabus you want to go for it. Let me know. Fine. MCQs तो आपने बता दिया that you want to go for MCQs. In case you want to go for subjective, the options are available also for the subjective. पूछो, किसी ने कुछ पूछना है? Any query? Yes class. मैम कल जो प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन था उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, मैम एक बार वो वाला बता दीजिए. Okay, wait for it. जो हम सिलेक्शन एंड दैट वन कर रहे थे. यस मैम, यस मैम, सिलेक्शन Okay. ट्रांजैक्शन. लैब असाइनमेंट 3 का कर रहे थे ना. Yes. Let me open. Any other question from यहाँ तक समझ में आया है सबको? टाइम स्टैम्प. Yes class. Time stamp, I hope 2PL Yes, ma'am, protocol yes, is also clear, conservative and strict and other things. Any placements to be held next week? कोई है pipeline में? Any placements?
कोई शेड्यूल्ड हैं? अब अभी तक तो नहीं। नहीं है No. कोई, मतलब अभी कोई पाइपलाइन में नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए? लैब 3 वी आर डिस्कसिंग ना? यस मैम, लैब Okay. 3 Yes, कार्टेशियन ma'am. प्रोडक्ट। Cartesian product says that you have to uh, make two the relation products of into a one. table. Yes ma'am, make two हाँ, relation make into them one. into 2 1. Yes. कहने का मतलब है जितनी रोज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पहला टेबल का फर्स्ट टपल यू हैव पिक अप, फाइन, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद ऑल द रोज जितनी उसके अंदर हैं. लेट मी this one, last one. Yes, ma'am. Last one. Cartesian product. This is your Yes, yes. relation that is you are asking now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you have to yield the relation which shows all the books relation articles. You have to take the books first. एक table लिया है, fine. Now what you have to Right. go for it. What you will do, for example, you take one table of the book, fine. So this will have, for example, 3 rows, 1 2 and 3, fine. So this another relation, ये आपका book है, this is your book, this is your article, Article. Yes. fine. और मान लो इसके अंदर you have 2, it also have 3, let it be 1 2 and 3. Now the Yes. cross product, that means you have to take the product, that means ये जो first row है ये पहले मल्टीप्लाई होगी इन तीनों के साथ. तीनों तो के ये साथ. फॉर Yes. एग्जांपल एक कॉलम है इसके अंदर एंड इसके जितने भी कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 2 कॉलम्स हैं या 1 कॉलम है, तो इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय योर फर्स्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 Right. मल्टीप्लाई बाय 3. कहने का Yes, मतलब है ma'am. Yes, ma'am. वो तो है, but इसको है ना, इसमें लिखा है yield से relation, तो हमको क्या बस बुक्स क्रॉस आर्टिकल्स वाले टेबल करना है या फिर? हाँ. अगर आपको सिंपल कहा गया है दैट यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट, अगर आपको हाँ. एक होता है वो जो आप वो कह रहे हो वो होता है यूनियन ऑपरेटर या इंटरसेक्शन, या जिसके अंदर जैसे यूनियन है, तो यूनियन भी एक तरह से वो होता है, लेकिन वो बेस्ड ऑन कंडीशन होता है. फॉर एग्जांपल 2 कॉलम्स हैं, अगर 2 कॉलम्स के अंदर बुक्स के नाम सेम आ रहे हैं या ऑथर्स के नाम सेम आ रहे हैं, तो उन पे अगर आपको ज्वाइनिंग करना है देन इट्स फाइन. लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो यू हैव टू ओनली मर्ज दीस 2 टेबल्स, दैट मींस Right. मल्टीप्लाई. मैम what I have written, मैम मैंने लिखा है सिग्मा सबस्क्रिप्ट ऑथर देन बुक्स क्रॉस आर्टिकल्स. मैम वो भी सही है? सिग्मा सिग्मा सबस्क्रिप्ट हाँ. ऑथर्स ब्रैकेट में बुक्स क्रॉस आर्टिकल्स. Sigma क्यों लिखा है? Sigma is not the condition, I think. You can only write here like books, fine. You don't have to use any operator here. अगर कुछ columns इसके लेने हैं, for example books के कुछ column लेने हैं, then you go for your pi operator, fine. कि मुझे ये columns देखने हैं इसके और ये columns देखने हैं इसके, लेकिन जब आपको सारे columns देखने हैं इसके, तो you don't have to use this also. pi नहीं यूज करना है. सिग्मा होता है कंडीशन के लिए. अगर आपको कंडीशन लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंडीशन लगाना है, अगर 2 एडजॉइनिंग करने हैं, यू कैन अप्लाई दैट सिग्मा आल्सो. बट अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो रहा है कि आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उनका, एंड दैट मींस इसकी रोज इससे मल्टीप्लाई करके जितनी भी हैं, अगर 3 रोज इसके अंदर हैं और 3 इसके अंदर हैं, दैट मींस टोटल 9 रोज शुड बी इन योर रिलेशन. दैट मींस Right. ये टेबल मतलब ये जो क्वेरी है वो ये कह रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 रोज आपकी उस रिलेशन में आनी चाहिए. अनलेस एंड अनटिल अगर वो कहता कि कॉमन लिखो बुक्स एंड रिलेशन में, देन इट यू कैन गो फॉर अ सिग्मा ऑपरेटर, फिर आप सिलेक्शन क्वेरी करते और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते, फाइन. लेकिन सिग्मा ऑपरेटर नहीं चल सकता. वी आर गोइंग फॉर अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मींस प्रोडक्ट्स ऑफ 2 टेबल, जितना डेटा दोनों टेबल्स में है उनको मर्ज कर दो आप. जिसपे होगी वैल्यू उसमें आ जाएगी, जिसपे नहीं होगी उसपे नल चला जाएगा. Fine. So it will Yes, go ma'am. like this one. So it is a product of 2 tables, not providing any condition. Fine. Yes, So ma'am. it will Yes. have to generate 9 rows in a total.
तो each row multiply by each row of other table. That is a Cartesian product. Fine. Yes, और अगर आपको कंडीशन पे लगाना है तो फिर वो सिग्मा ऑपरेटर्स हैं, यूनियन ऑपरेटर्स हैं, पाई और इंटरसेक्शंस हैं, वो फिर कॉमन हो जाते हैं. Clear? यस मैम, वही कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि व्हेन वी वर डिस्कसिंग तो ऑथर के बेस पे करने का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रिलेशन चाहिए. कार्टेशियन का मतलब हो जाता है दैट मींस फुल ज्वाइन हो गया एक तरह से. राइट. अगर वो ऑथर के बेस पे मांगता तब लिखते तब तब उसका हम सिग्निफिकेंस कंडीशन उस होता. पे लगाते और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फिर उसके लिए दूसरे अलजेब्रा ऑपरेटर्स वी कैन यूज इट. बट इस केस में क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं सिर्फ हमें प्रोडक्ट दे दो टेबल्स का एंड सिंपल जनरेशन मतलब रिलेशन को रिलीज कर दो विद प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. तो रिलीज दैट वन और यील्ड रिलेशन. तो जितनी उसकी रोज हैं जितनी उसकी रोज हैं, अगर दोनों में 5-5 हैं तो 25-25 सीधा प्रोडक्ट ऑफ दैट टू टेबल्स. फाइन. और जिसमें डेटा है फाइन, जिसके आगे नहीं भी मिल रहा है उसके आगे भी आप नल चला जाएगा. तो ऑल हैव द नल वैल्यूज. सो इट विल जनरेट मैक्सिमम नल वैल्यूज बिकॉज वो डॉट प्रोडक्ट हो गया है और वो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा है. तो यहाँ के रो कॉलम उठाएगा, इसके सारे कॉलम्स उठाएगा, मर्ज कर देगा और रोज के साथ मल्टीप्लाई कर देगा. यस मैम. ठीक है ना. सो इन दिस वे. एनी मोर क्वेश्चन? नो मैम. तो बस यही. Fine. Fine, class. Thank you. So see you on Monday. Yes, class. बोले. नोट्स कहाँ पे दिए हुए मैम? Sorry, क्या नहीं दिए? नोट्स मैम, नोट्स कहाँ दिए हैं? नोट्स बच्चे ये दे रखे हैं ना. ADBMS चैनल खोलो. In this ADBMS channel, you will have the देखो आ रहा है पोस्ट फाइल्स एंड नोट्स. ADBMS चैनल के अंदर है. नोट्स इसके अंदर है एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 1. लेट मी नोट्स खोल रहा है. इलेक्टिव में यू हैव द जर्नल्स. एक बार जर्नल में देख लेना, मैंने डाले हैं. दीज आर द नोट्स. फाइल्स में नहीं, ADBMS चैनल के अंदर यू विल गेट द नोट्स. फाइल्स के अंदर यू विल गेट, सॉरी नोट्स नहीं, फाइल्स के अंदर, बिकॉज नोट्स इट इज जस्ट वो है, इट विल ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट लाइक फॉर्मेट. इन द फाइल्स के अंदर यूनिट 1 एंड यूनिट 2. ADBMS channel files, and in unit 1 you will have the files and unit 2 have the unit 2 material. So it has all the things. Even got it? Yes मैम. Okay, fine. इसमें intern papers भी हैं and syllabus copy, everything you can check it out. Even external papers are also there. You can have the look of that one also. Clear? And other than that, in a normal journal channels के अंदर you will get the links of these notebooks. In notebooks space जो हम class में which I am using up for the teaching, you will get the links of these notebooks in the journal tab. So journal के अंदर you will get the links. ये मैंने बता दिया. Share points आ रहे हैं. YouTube channel is also there for all your recordings is there, and these are the links. यहाँ मैंने share point, yes, ये share points हैं. So you will get the links of the notebooks. This notebook. All other can leave. You have another class. If any query, you can wait. Otherwise, you can leave. Fine, guys. Thank you, everyone. थैंक यू मैम. Okay, dear. Test फेस्ट सोच लेना कुछ. What you want to give and when you want to give. We'll discuss it on Monday. All other can leave. Any questions and you have, so you can ask, otherwise leave. Thank you.